First thing, I would like you to go to Google and search for the terminology pedagogy and tell me what it means. Method and practice of teaching, especially as an academic subject or theoretical Okay. concept. Anybody else? All right. Pedagogy is the method of how teachers teach. Okay. Please put your responses on the chat. Thank you so much. So, peda, as we all know, means child. Agogos means leader. So, it actually means child leader. And yes, जो आपने ढूंढा है वो भी ठीक है. Method of teaching children. उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है ये वर्ड. बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए. And then please search for andragogy. It's for adults. ढूंढ तो लीजिए. Thank you, Dr. Abia, for the definition. Method of teaching adult learners. Okay. Yes. Thank you, Adil sir. Andra means man, and agogos means leader. So this is the actual meaning of the terminology is man leader, man as a leader, and pedagogy is child as a leader. But yes, you are all correct in saying that these terms are used for teaching methodologies. बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए और adult को कैसे पढ़ाया जाए. This is the difference in these two terminologies. अब andragogy जो है ये मैल्कम नोल्स 1980s में सजेस्ट किया था. However, let me tell you that the commonest terminology used is pedagogy. चाहे वो adult के लिए हो रहा हो या वो child के लिए use हो रहा हो. And these are the 6 assumptions of about adult learners. कि उनका एक self concept होता है, वो independent होते हैं much more than the child learner. वो अपने साथ experiences लाते हैं जिंदगी के, अपने practical life के, personal life के, when they come to the learning session. So they are not blank. And they are ready to learn depending on the need. वो ऐसे नहीं आते, उनकी कोई जरूरत होती है जब भी वो लर्निंग पे आते हैं. और वो प्रॉब्लम सेंटर्ड वो फोकस रखना चाहते हैं कि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ के मसले को हल करें. मिसाल के तौर पे आप लोगों ने कहा कि हम टीचिंग बेहतर करना चाहते हैं. That's an issue you want targeted in this course. That is one of the reasons why you have come. Some people might want to learn how to assess better. Some people might want to learn how to make a course better. Or some people want to learn all of these things. तो आप किसी चीज को हल करने के लिए आए, चाहे वो हल करना यही हो कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए प्रमोशन के लिए. And there is an internal motivation. And you all want to know why you are learning something. अगर हम एडल्ट लर्निंग पढ़ रहे हैं, एडल्ट लर्नर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है, ये आपके ज़हन में सवाल हैं. And these are the 6 assumptions of andragogy as proposed by Malcolm Knowles. यही चीज इंटरनेट पे आपको एडल्ट लर्निंग थ्योरी के नाम से भी मिलेगी, which is a wrong statement. There is no adult learning theory ever given, क्योंकि जो लर्निंग थ्योरी है वो चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों पे इक्वली एप्लीकेबल. तो एडल्ट के लिए अलग थ्योरी नहीं है और चिल्ड्रन के लिए अलग थ्योरी नहीं है. जो लोग एडल्ट लर्निंग थ्योरी की बात करते हैं वो टर्मिनोलॉजी गलत है. हो सकता है उसमें वो कंटेंट सही कर रहे हो, मगर ये मिस कॉन्सेप्ट है कि एडल्ट के लिए लर्निंग थ्योरी अलग है और बच्चों के लिए अलग. There is only one theory, which is called learning theory.
अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि हमारा अंडर ग्रेजुएट कैसा है। क्या आप हमारा अंडर ग्रेजुएट वैसा ही है जैसे आप लोग हैं? कोई फर्क है एज ए लर्नर आप में और हमारे अंडर ग्रेड स्टूडेंट में? जी, Sir, undergraduate student is raw. रॉ से क्या मतलब? रॉ से His क्या? background education is not that technical and practical as compared to what we have gone through and what we are going through. When you reach at a postgraduate level, it is more practical and need based. ठीक है। And व्हेन यू से नाइव क्या मतलब? naive, raw. डॉक्टर पारस से सवाल। जी डॉक्टर पारस। वो जो नए हों और जिनको एक्सपीरियंस ना हो, यस, होते हैं। यही हमारी एक अजम्पशन है कि उनके पास तजर्बा कोई नहीं, मगर उनके पास बहरहाल कोई ना कोई तजर्बा है। ये नहीं, यही चीज है जो कि हमें नहीं भूलनी। सो दे आर रॉ, दे आर नाइव वेयर technical knowledge is concerned, but otherwise they have 18 years behind them, less exposure to practical teaching. All right, ठीक है। और बताएं ना, ये तो ठीक है उनकी नॉलेज बेस तो कम है ही, उसके अलावा फर्क बताएं। यही तो एक फर्क। कॉन्फिडेंस का फर्क होता है। आप में और उनमें क्या फर्क? कॉन्फिडेंस उनमें कम है, आप में ज्यादा है। चले, और I think their Different memory point of has view से sharp क्या मतलब? memory डॉक्टर समीना, as डिफरेंट compared पॉइंट ऑफ to व्यू से क्या us. मतलब? एज डिफरेंस है, ओके। Memory is sharp as compared to us. जी, They have sharp memory as compared to us. they have sharper memories, all right, they lack discipline, सर, डिफरेंट ठीक है। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये कि हर चीज का देखने का नजरिया जरा मुख्तलिफ होता है। पहले हम जरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, हमने नेगेटिव चीजें नहीं देखी होती। जैसे मेडिकल हाँ, लाइफ में भी हम पहले जब स्टूडेंट थे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचते थे कि नहीं, सब कुछ बहुत स्मूथ, बहुत इजी होता है। लेकिन जैसे ही हाँ, हम बाद में देखते जाते हैं, डिफिकल्टीज आती हैं। चलें, ये बताएं, आप अपने आप को सोचें जब आप अंडर ग्रेड ईयर्स में थे, फर्स्ट ईयर को सोच लीजिए जब आप फर्स्ट ईयर में थे, और आज का बच्चा फर्स्ट ईयर में इन क्लास, क्लास के दौरान बिहेवियर में क्या फर्क? इनिशियल डेज के ऊपर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ईगर लर्नर्स होते हैं, हर चीज को ग्रैस्प करना चाहते हैं, हर चीज आप को नहीं आप थे इरेगुलर बॉडी लर्नर करना। जब आप फर्स्ट ईयर में थे? बिल्कुल। तो ये तो कॉमनैलिटी होगी, ओके। फर्क क्या है? We had no access to technology. They have You access to had no technology. access to, yes, you had no access to technology. क्लास में बिहेवियर आज के स्टूडेंट का कैसा होता है अंडर ग्रेड? सर They वो टीचर को कुछ वो टीचर को मानते ही नहीं है कुछ। आजकल के जो यस, स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि हम वेरी उनसे ज्यादा जानते हैं। वेरी गुड। वो एंड कहते व्हाई हैं इज कि दैट? पुराने जमाने का है, वह इसको क्या पता क्या है। व्हाई इज दैट? वो कुछ क्यों ज्यादा पढ़ लिया, टीचर को नहीं जानता? कुछ ज्यादा सीख लिया इंटरनेट से उन्होंने। इंटरनेट एक्सेस है, जो शिराज साहब ने कहा कि दे आर मोर टेक savvy, टेक्नोलॉजी ज्यादा उनके पास है, यही फर्क मोस्ट लाइकली दे थिंक दे आर मोर अपडेटेड देन द टीचर्स। है। एंड इन सम केसेस इज दैट रॉन्ग? नो। ओके, आई एम ग्लैड यू एक्नॉलेज इट। तो ये वो बच्चा है जो कि टेक्नोलॉजी उसके पास, उसके हाथ में, लिटरली उसके हाथ में। आप ऐसे बच्चे, आप अपने घर में बच्चों को देख, आपके घर में अगर बच्चा है, यंग कोई है, तो अपने आप को उस उम्र से कंपेयर कर लीजिए जब आप उस एज में थे और आज
जो आपके घर में यंग बच्चा है, उसके बिहेवियर में फर्क देख लीजिए, मिलता है फर्क। Yes. तो यही वो बच्चा, इसी तरह का बच्चा है जो कि आपकी क्लास में मौजूद है। और हम किस नजरिए से क्लास में जाते हैं और वो किस नजरिए से बैठा है। वो तो बैठा है इस नजरिए के यार इससे ज्यादा तो मुझे आता है, ये जो बोल रहा है मैं कहीं और से देख सकता हूँ। एंड इज ही थिंक ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव और हर पर्सपेक्टिव। सोचे तो सही। बट सर एट आवर टाइम, जब हम अपने यंग एज में थे, हम भी कुछ ऐसा ही सोचते थे ये कि टीचर को हमारे कुछ नहीं उस्ताद को ज्यादा कुछ नहीं आता। आता। तो चले ठीक है, ऐसा बिल्कुल ठीक है, ओके। इज अ प्रॉपर जनरेशन गैप, ऑल राइट। तो अब ये देखते हैं कि ये कौन है जो हमारी क्लास में बैठा है, ये 19 साल का। ये जनरेशन जी कहलाता है, जो कि 1997 से 2012 तक जो पैदा हुए हैं, इस दौरान जो पैदा हुए हैं वो जनरेशन जी कहलाता है। यानी जो 1997 में पैदा हुआ है वो आज एमबीबीएस से ग्रेजुएट कर चुका होगा, बल्कि हाउस जॉब भी कर चुका होगा, 26 साल का, 27 साल का होगा। और जो 2012 में पैदा हुआ है वो आज कहता है उम्र का 11 साल, वो हमारी डिस्कशन से आउट। मगर ये जो अर्ली टाइम्स के हैं, सन 2000 में जो बच्चा पैदा हुआ वो आज 23 साल। these all of these people are generation Z, जूमर्स भी कहते हैं, आई जनरेशन भी, सेंटेनियल्स भी, पोस्ट मिलेनियल्स भी, ये होमलैंडर्स भी, ये सब इनके अलग अलग नाम है, मगर है वो ये कि डिफरेंट नेम्स टू द सेम जनरेशन। हमारी जनरेशन मतलब मेरी जनरेशन का भी नाम है, आपकी जनरेशन का भी नाम हो, अलग है, वो सब मौजूद नाम। और इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। They are more self-directed learners, yes, because they don't need to be dependent on teachers. उनको टॉपिक पता चल जाए वो खुद ढूंढ लेंगे। Okay, so let's look at their characteristics. सर एक क्वेश्चन है, होमलैंडर से मतलब ये है कि सारा दिन घर पे बैठे होते हैं? होमलैंडर से मतलब ये है कि ये घर पे बैठ के भी सारा कुछ एक्सेस करते हैं, जैसे आप कह रहे हाँ, हैं। ये बिल्कुल कमरे में बैठ के भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी बात हकीकत है कि जी। बहुत सारी चीजें वो कमरे में बैठ के कर सकते हैं। कुछ चीजों के लिए मेडिकल साइंसेज में, डेंटल साइंसेज में जाहिर है उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए और जाना पड़ता है। ये पहली प्योरली डिजिटल जनरेशन, ये वो जनरेशन है जिसने इंटरनेट के बगैर दुनिया देखी ही नहीं है भाई। ये सोचिए प्लीज, वी हैव टू रियलाइज। मेरी जनरेशन ने तो वो टाइम देखा है जब घरों में फोन नहीं होता था, टीवी नहीं होता। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने वो दौर देखा जब हर घर में टीवी और फोन होता, लैंडलाइन वाला। ये वो जनरेशन है जो पैदा ही इंटरनेट पे के दौर में हुई। तो अगर इंटरनेट चला जाए तो इनकी परेशानी तो जायज है ना। रियलिस्टिक है, फाइनेंशियली माइंडेड है और डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करते हैं ज्यादा, हमसे कहीं ज्यादा। मगर असल चीज जो हमारे काम की है ये है कि ये डिजिटल दौर में पैदा हुए हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी की गोद में पैदा हुए हैं। एंड व्हेन वी गो टू क्लास एज टीचर्स वी टेंड टू फॉरगेट दिस कि ये तो मोबाइल खेल रहा है, ये मेरी तरफ नहीं देख रहा है, ये मोबाइल में बिजी है, चैटिंग में। इसलिए मोबाइल में बिजी है क्योंकि उसको हमारे लेक्चर से शायद वो चीज नहीं मिल रही जो जिस तरह से उसको चाहिए। इनकी अटेंशन स्पैन बहुत छोटी होती है। आप YouTube पे देख लें, जितने वीडियो क्लिप्स हैं मेजॉरिटी छोटी ड्यूरेशन, 10 मिनट, 15 मिनट, दैट्स इट। दैट्स देयर अटेंशन स्पैन। घंटा भर लेक्चर में देख के वो कंसंट्रेट करें, ये एक्सपेक्टेशन ही गलत।
कि वो खामोश बैठ के सुने। The fault is not theirs, they are built like that. हम अगर घोड़े को चाहें कि वो गोश्त खाए, वो नहीं खाएगा। That is where the difference is. That is where the gap is. हम टेक savvy उतने नहीं हैं, बाज लोग, जितने के वो लोग हैं। Now, ये बताइए मुझे। जी जनाब। मोस्ट लाइकली जो ये गैप है फैकल्टी और लर्नर एडल्ट यंगर एडल्ट लर्नर्स का, उसको हम जी। कम कर सकें। ताकि इस गैप को कम सके, to know the difference, improve teaching, okay, to getting to better understand the student of this generation. Why do you want to understand this generation, Shiraz Sahab? To improve my teaching, reach out to the student better. Exactly, to reach out to the students better. कि हम लोग जो डिलीवर कर रहे हैं वो उस मुताबिक हो कि वो रिसीव करें, मगर उसके लिए जरूरी तो नहीं कि हम लेक्चर दें। आप सब सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, हमारा काम लेक्चर देना ही सिर्फ तो नहीं, हमारा एक्चुअल काम तो नॉलेज डिलीवरी है ना, स्किल डेवलपमेंट, एटीट्यूड डेवलप, प्रोफेशनल एटीट्यूड डेवलपमेंट, लेक्चर ही तो नहीं है। दिस assumption has to be questioned कि क्या नॉलेज डिलीवरी सिर्फ लेक्चर से ही हो सकती है आज के दौर में? ये मैं आपसे जवाब नहीं पूछ रहा, मैं आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। I'm throwing it as a question for your reflection. So we have to think, what are the different ways in which knowledge can be delivered effectively? अगर हम लेक्चर ही देना है, ठीक है, हम सबको सिस्टम में रहते हुए लेक्चर डिलीवर करना होता है। What amendments should we make in our lectures to make them more effective? ये सोचने की बात। एक ऐसे इंसान को पढ़ा रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी पे बेस करता है, उसकी सारी जिंदगी टेक्नोलॉजी पे बेस, और उसका अटेंशन स्पैन छोटा है। आप लोगों को अगर कोई मैं एजुकेशनल वीडियो देखने को दूं और कोई आधे घंटे की हो, आप बोर हो जाएंगे। आप भी चाहेंगे कि कंसाइज इंफॉर्मेशन मिले और छोटे टुकड़ों में। Even you want it. This generation is far ahead where technology is concerned. But of course, there are some principles that we need to follow. Dr. Munib, are you here? Yes, sir. I've given you a Word document titled 8 Principles to Guide Educational Practice. ओके, सो मैं इनको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देता हूँ। ये आप हाँ प्लीज भेज दीजिए। Yes, thank you. Lecture should be interactive, tutorials and workshops हो जाएं, पॉडकास्ट है, ऑडियो लेक्चर्स हैं, बिल्कुल ठीक है। These are the things that we need to do. सर मैंने शेयर कर दिया सबके साथ। अच्छा, now I would like you to take 10 minutes and read this handout that I prepared for you. और ये बेसिकली मैंने कोई 90% कॉपी किया है सोर्स से, वो सोर्स मैंने एंड पे लिख दी है।
इसको जरा देखें, फिर हम इस पे डिस्कशन करते हैं. I'm giving you 10 minutes. Okay, so let's start discussing these points one by one. Thank you, Ms. Salman. पहला point is about learning, and it's not about learner. Learning is an active mental process. इसका मतलब पैसिव मेंटल प्रोसेस, एक्टिव मेंटल प्रोसेस, क्या मतलब? Participatory in nature, just like in this session, we are participating, discussing with you, and it's not one directional that you are speaking and we are only listening. So ओके, जहन में आपके माइंड्स में क्या हो रहा है, ये मुझे बताइए. This is actually Are you- brainstorming sort of thing that you are on the only not the teachers uh, data going inside, Uh-huh. All right. but the student सिर्फ is actually आप thinking सिर्फ and अब्सॉर्ब नहीं कर रहे हैं, yes, क्या it, आप उसके बारे में सोच भी रहे हैं ऑटोमेटिकली एट द सेम टाइम? yes, bringing out their own ideas and their own thoughts regarding that thing. Okay, yes. You see, learning is an active mental process with learners making judgments about when and how to modify their knowledge. Constantly आप अपने नॉलेज में ऐड कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं. मिसाल के तौर पे ये सबको मालूम है कि आज की जनरेशन बड़ी टेक्नोलॉजी में आगे है. और जब हमने ये डिस्कस किया कि हाँ, आपके पास जो बच्चा बैठा होता है 19 साल का, 20 साल का, वो भी टेक्नोलॉजी में आगे है और बाज दफा फैकल्टी से ज्यादा ही आगे होता है. एक ये रियलाइजेशन जो आपके बैक ऑफ द माइंड थी, वो एकदम से फोर फ्रंट पे आ गई, क्योंकि आपने प्रोसेस किया. आपके जहन में कॉन्स्टेंटली, जैसे कहते हैं ना उर्दू में, गरारी चलती है, वो चल रही है. यू आर ऑटोमेटिकली using that information and relating it with your past knowledge, with your past experience, with what you already know. आप प्रोसेस कर रहे हैं उसको. Your mind is not absorbing only, and that is what it means कि learning is an active mental process. जब आप कोई चीज बता रहे होते हैं, तो वो जो लर्नर है, चाहे वो 19 साल का हो या वो 55 साल का हो, वो उसको प्रोसेस करता है. That is active learning. Are we clear about these two terminologies? With the mental activity that is going on inside, वो है active learning. Learning कभी passive नहीं हो सकती, क्योंकि वो फिर evaporate कर जाती है. जो actual learning है वो active ही होती है. We also address students' concern in active learning. Yes, that is true. We do that. They have their own thinking and they can interact. Correct. Okay. इस पॉइंट के बारे में कोई सवाल? और may I go ahead? Passive learning means, okay. Passive learning simply means कि आप absorb कर रहे हैं without actually modifying your own database, जो आपका database ज़हन में पहले से मौजूद है, जो आपके पास knowledge base पहले से मौजूद है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, मगर अगर आप उसको सिर्फ absorb करते हैं, वो passive learning है. सिर्फ सुन रहे हैं, उसको प्रोसेस नहीं कर रहे. That is passive learning. Thank you, Dr. Samina, for this question. May we go ahead? Let's look at the second point. Learners should be given opportunities to develop their own understanding through independent learning, combined with dialogue with teachers and peers. ये क्यों करना चाहिए?
जी, ये नंबर 2 क्यों करना चाहिए? मेरे ख्याल से इसकी जरूरत यूं रहेगी कि हर दफा सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग से जो स्टूडेंट है वो हर चीज को सही तरीके से समझ सके, ये जरूरी नहीं। अच्छा उसके देखिए, लिए यहाँ पे बहुत सेल्फ कुछ डायरेक्टेड नहीं लिखा हुआ, इंडिपेंडेंट लिखा हुआ। ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड अलग चीज होती है, तो इंडिपेंडेंट सेकंड लर्निंग की पॉइंट बात हो रही है। क्या आज आपको कोई इंडिपेंडेंट लर्निंग का तजुर्बा हुआ इस सेशन में? जी सर, जो आपने हमें रीडिंग दी वो वो शायद हमारे, इंडिपेंडेंट लर्निंग थे, बिल्कुल सही बात है, आपने वो हम कहा इंडिपेंडेंट क्या, खुद लर्निंग। समझो, खुद पढ़ो खुद समझो। एग्जैक्टली। और अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं डायलॉग करने की, एग्जैक्टली। व्हाई शुड वी डू दिस? ताकि जो हमने समझा है हम उसको कंफर्म कर सकें कि सही समझा है या गलत समझा है। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। डिस्कशन जो आपने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सही समझा होगा, तो उनके जो भी समझ है वो सपोर्ट होनी चाहिए कि हाँ भाई आपने सही समझा। कुछ लोग होंगे जिन्होंने थोड़ी चीजें मिसअंडरस्टैंड की होंगी, उसकी करेक्शन की जरूरत है। कुछ लोगों ने नहीं समझा होगा, गैप हो गया होगा, उस गैप को फिल करने की जरूरत है। तो ये तीनों तरह की वैरायटी के आपके पास लोग मिलेंगे जब आप उनसे कुछ पढ़ने को कहते हैं, एंड यू नीड टू एड्रेस देम। तो एक चांस उनको कहीं ना कहीं टाइम टेबल में, शेड्यूल में मिलना चाहिए जहां पे उनसे डिस्कशन हो, ताकि वो, जैसे मिसेस सलमान कह रही हैं, टू अंडरस्टैंड बेटर, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। लेट्स गो टू नंबर 3। सर, इसमें एक प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ प्लीज, कि जरूर। हम अपने सेशंस में जब भी रीडिंग्स देते हैं स्टूडेंट्स को और कहते हैं कि आप ये 15 मिनट में पढ़ लें, फिर हम डिस्कस करते हैं, जी। तो 15 मिनट के बाद जब क्लास में वापस जाते हैं तो किसी ने वो रीडिंग नहीं पढ़ी होती। अच्छा तो ठीक। ये बड़ा मसला होता है इसमें, इंडिपेंडेंट लर्निंग करवाने में हमारे यहाँ प्रैक्टिकली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चले। द जनरल प्रिंसिपल इज कि स्टूडेंट आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर। मेरी आवाज आ रही है सबको? सर यस, यस सर। ओके। डॉक्टर पारस, आपको नहीं आ रही? देयर मस्ट बी सम इशू। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो um, अगर स्टूडेंट नहीं करता आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो, तो क्यों नहीं करता? क्या वजूहात हो सकती? सर, इसमें मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये रहा है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट एजेंडाज के साथ आते हैं, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है। तो अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन लेना चाहता है, उसका प्रमोशन हो जाए, उसकी सैलरी बढ़ जाए, तो कहता है बस ठीक है, मैं किसी तरह निकल जाऊं और डिग्री ले लूं, हाँ, और मिनिमम मुझे एफर्ट लगानी पड़े वो डिग्री लेने में। आई बिल्कुल थिंक इट ठीक है। वेरीज फ्रॉम एजेंडा ऑफ स्टूडेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दे वांट टू लर्न, दे वांट टू अक्वायर स्किल्स, क्योंकि उनकी फ्यूचर जॉब्स डिपेंडेंट होती हैं उस डिग्री पे। बिल्कुल ठीक है। तो वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट जो आपका पूल ऑफ स्टूडेंट्स होता है उसमें वेरिएबिलिटी बहुत होती है, और बिल्कुल हर ठीक किसी है। का अपना एजेंडा होता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो आई ठीक है। थिंक इसलिए हर यस, कोई यू आर उतना राइट। यस, रेस्पॉन्सिव नहीं होता जितना होना बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। So, yes, they are not giving value to the teacher, but there must be a reason why they're not giving value to the teacher. बहुत दफा ऐसा होता है कि अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन कही और स्टूडेंट ने फॉलो नहीं की, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, देयर इज नो रेपरकशन। वो करे करे, नहीं करे नहीं करे, वो क्लास में आए ना आए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। देयर इज नो इम्पैक्ट, देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस। अकाउंटेबिलिटी स्टूडेंट की नहीं है। उसको अटेंडेंस मिल जाएगी, उसका फॉर्म जो है वो इम्तिहान के लिए चला जाएगा, चाहे वो उसके अटेंडेंस कम हो या ज्यादा हो। तो अकाउंटेबिलिटी उसकी है ही नहीं, इसलिए वो नहीं केयर करता। अगर उसको पता है कि हाँ यहाँ स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे, तो उसकी मोटिवेशन कोई भी हो, फॉलो करेगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर उसे नहीं पढ़ा, तो नहीं पढ़ा, क्या कर लेंगे आप? नहीं पढ़ेगा।
हाँ, जो ऑफ कोर्स जो आप बात करें वो बिल्कुल 100% सही है। जो मोटिवेटेड होगा वो तो खुद पढ़ेगा। तो देयर इज इन आवर सिस्टम देयर इज लैक ऑफ स्टूडेंट अकाउंटेबिलिटी। सो लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 3 प्लीज। इसके बारे में मुझे बताएं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यस, दैट्स वेरी ट्रू डॉक्टर वकार, लैक ऑफ बॉन्डिंग भी होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जी, ये पॉइंट प्रॉब्ली सर कलेक्टिव लर्निंग के बारे में कर रहा है कि किस तरह एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को यूज करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। फैकल्टी क्या करे? पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक फैकल्टी क्या करे? फैकल्टी ऐसा पहला, टास्क या हाँ, कोई ना कोई टास्क देना चाहिए जो कि वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व करे या ग्रुप में सॉल्व करे। उससे क्या होता है? क्यों दे टास्क? मोस्ट लाइकली इसकी एक एग्जांपल के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। जैसे कि हमने खुद इस तरीके से सीखा है कि इन कार्डियोलॉजी के हम जब इनिशियली रेजिडेंट्स थे तो हमारे साथ सबऑर्डिनेट्स R1 R2 R3 के साथ हमें ER में रखा जाता था कि वहाँ पे कुछ फैसले हम इंडिपेंडेंट भी ले सके रिगार्डिंग कंसर्न पेशेंट के हवाले से। जहाँ पर हूँ हम टीचर्स या हमारे कोलीग्स के साथ कोऑर्डिनेट करके उस चीज़ को बेहतर तरीके से सीख सकें। ठीक है, ये बात, सॉरी सर, आपका नाम? डॉक्टर अली फराज। जी, डॉक्टर अली फराज साहब, ये याद रखिएगा, आई विल रेफर टू दिस वेरी पॉइंट इन अ लिटिल व्हाइल। ठीक है? तो चाहे वो आप वार्ड में, ओपीडी में, इमरजेंसी में, क्लासरूम में, फील्ड विजिट में कोई टास्क दे रहे हैं, मगर टास्क दें। मगर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों टास्क दें, क्यों सॉल्व करवाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग बाय देमसेल्व्स क्यों करें? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। क्योंकि उस न्यू स्टूडेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो वो नंबर रिस्पॉन्सिबल एक, बनेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अवॉइड स्पून फीडिंग क्यों करें मैम? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। टू एक्टिवेट द मेंटल, एक्टिव मेंटल लर्निंग, यस डॉक्टर राबिया, ओके, so that they develop interest, okay, yes, you are all giving me very logical answers, thank you very much. ट्रांसफर नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। Yes, जब तक कि वो इस्तेमाल नहीं करेगा वो इंफॉर्मेशन, वो उसको अब रिटेन ही नहीं कर सके। Adult learner has to have something which is of practical importance. वो जो मैंने 6 assumptions बताई थी आपको, नोल्स से ने जो लिखी हैं, उसमें से यही था कि वो प्रॉब्लम फोकस्ड होता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है ही ऐसा लर्नर। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम ऐसे बन जाते हैं कि अच्छा, इसका इसका क्या अमल है मेरी प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में, क्या इसका इम्पैक्ट है। अब हम सब ने बायोकेमिस्ट्री में क्रेब्स सिट्रिक एसिड साइकिल याद की है, मगर शायद हम में से चंद ही होंगे जिसको मालूम होगा कि भाई इसका एक्चुअल क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, क्यों याद करें। तो मलेरिया की, फैल्सिपारम की लाइफ साइकिल हमने याद की है, मगर एक जनरल प्रैक्टिशनर क्यों याद करे, ये उसको मालूम होना चाहिए। तो ये चीजें जब तक प्रैक्टिकली वो करेगा नहीं, वो सीखेगा नहीं, वो उसको इस्तेमाल करना नहीं सीखेगा, और आपका पढ़ाया हुआ इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, दैट्स अ एडेड बेनिफिट कि वो टाइम मैनेजमेंट सीखता है, ठीक है, दैट्स ऑल वेरी लॉजिकल। ओके, सो are we clear about point number 3? May I go ahead, please? Okay, let's go to 4 and 5 together.
दोनों बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से। Yes, please, let's discuss 4 and 5. Anybody? जवाब नहीं आ रहा मेरे पास, कोई लोग खामोश क्यों हैं? सर वो लाइकली जो इसमें जो भी चीज स्टूडेंट को सिखाई जा रही है वो एटलीस्ट रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल डॉक्टरी अगर के अंदर प्रोफेशन के अंदर काम कर रहा है तो वो उस नॉलेज को अपने पेशेंट्स के ऊपर रियलिस्टिक डिजीज के ऊपर काम कर रहे हो रादर देन कि कोई हाइपोथेटिकल या उससे कोई बेनिफिट रियल वर्ल्ड को ना मिल सके तो उनसे कोई बिल्कुल ठीक। फायदा नहीं हो सकता। आपको याद होगा अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले सवाल किया था कि आप थ्योरी पढ़ना चाहेंगे, व्हाट चॉइस डू यू हैव, कि आप थ्योरी पढ़ना चाहेंगे सिर्फ, या आप कोई ऐसी चीज पढ़ना चाहेंगे जिसको आपको प्रैक्टिकल काम आए आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में एज अ फैकल्टी। और आप सबने कहा कि नहीं, हम प्रैक्टिकल चीजें पढ़ना चाहेंगे। यही एडल्ट लर्नर स्टूडेंट जो आपके सामने बैठा है वो भी ऐसा ही है। हाँ ठीक है कि हमारे कोर्सेज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें थ्योरी का बेस बनाना पड़ता है और फिर उस पे हम प्रैक्टिकल चीज डेवलप करते हैं। दैट इज वेरी कॉमन एंड दैट इज वेरी लॉजिकल, दैट इज करेक्ट। मगर उस प्रैक्टिकल चीज को देना ना भूलें। मिसाल के तौर पे अगर आप एक लेक्चर लेते हैं हाउ टू अप्रोच अ पेशेंट विद वट एवर कंडीशन यू वांट, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जाके उस पेशेंट को देखने की भी, चाहे वो डेंटल चेयर हो या वो वार्ड हो या वो फील्ड विजिट हो या वो कोई ऐसा इदारा हो जहां पे वो जाके वो देख सके। दैट्स द इम्प्लीकेशन। जहां मुमकिन हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर टॉपिक में आप पढ़ाएं और उसको आप कोई एक्सपीरियंस दें, इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच, मगर जहां जहां मुमकिन हो आप उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दें इस्तेमाल करने का। वहां वो सुन नहीं रहा हो आपको, वो खुद से उसको एक्सपीरियंस कर रहा। दैट इज व्हाट इज मीनिंग टू रिफाइन देयर स्किल्स। तो डिजीजेस हैं, अब बेसिक साइंसेस ले लीजिए। बेसिक साइंसेस में बहुत सारी चीजें हैं जो कि सारे थ्योरेटिकल होती हैं, मगर हर थ्योरी के पीछे एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी होती है। अनैटमी में आप अप्लाइड एनाटमी पढ़ाते हैं, फिजियोलॉजी में आप नॉर्मल से अब नॉर्मल में जाते हैं, पैथोलॉजी में आप हिस्टोपैथोलॉजी को रिलेट करते हैं सिम्टम से वगैरह वगैरह। तो वो कहीं जाके देख सके उन चीजों को, एक्सपीरियंस कर सके। दैट इज द मीनिंग। जहां भी पॉसिबल हो, एज मच एज इज प्रैक्टिकल इन योर कॉन्टेक्स्ट, इन योर सर्कमस्टांसेस। शिराज साहब मुझे मालूम है कि रिसर्च के बेसिस पढ़ाते हैं, अंडर ग्रेड को भी पढ़ाते हैं, कभी पोस्ट ग्रेड को भी पढ़ाते हैं। तो जहां जहां वो उनसे रिसर्च करवाएंगे, वो स्टडी डिजाइन अप्लाई करवाएंगे, सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई करवाएंगे, सैम्पल साइज एस्टिमेशन अप्लाई करवाएंगे, तो वहां वहां वो उतना सीखता चला जाएगा। मगर अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ा देंगे तो वो बेकार हो जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज इज बेटर रिटेन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एरा, ये आपने बहुत गोल्ड वर्ड्स हैं, गोल्डन वर्ड्स हैं ये सबको याद रखनी चाहिए। लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 6 प्लीज, वेरी क्विकली। इसमें दो वर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ असेसमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जब तक आप उसकी तस्हीह नहीं करेंगे, उसको बताएंगे नहीं कि ये गलत है और या ये सही है, और ये गलत है तो इसको कैसे सही करो, तो कैसे सीखेगा? वो सीख ही नहीं सकता। करना सिर्फ काफी नहीं है,
आपने उसको डेमो दे दिया, आपने उसको प्रैक्टिस का चांस दे दिया, मगर फीडबैक नहीं, उसको ये नहीं क्या ये बताया कि हाँ ये तुमने सही किया, और ये नहीं बताया कि हाँ ये गलत है, इसको ऐसे सही करो, बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट, आपसे बेहतर कौन बता सकता है। पॉइंट नंबर 7 देख लें प्लीज। वो खुद अपने सीखने के बारे में सोचे। गिव देम अ चांस टू रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन इज सच एन इंपॉर्टेंट लर्निंग टूल दीज डेज। मौका तो दें कि अच्छा मैंने जो सीखा है वो सही सीखा है, गलत सीखा है, मेरी क्या गैप है। आप देखते हैं कि बाज आपके पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज नहीं सही कर रहे होते, हालांकि वो चाहते हैं सही करना। गिव देम टाइम टू रिफ्लेक्ट, सिट एंड डिस्कस विद देम। अंडरग्रेड भी ऐसे आपके वार्ड्स में आते हैं, आपके क्लिनिक्स में आते हैं, तो उनको मौका तो दें रिफ्लेक्शन का। अली फराज साहब, आप जो बात कह रहे थे वो पॉइंट नंबर 8 से भी रिलेटेड है। उस वक्त जो आपने बात की थी उससे भी रिलेटेड था, और पॉइंट नंबर 8 से भी रिलेटेड है। सेल्फ जजमेंट, समीना साहिबा, थैंक यू वेरी मच। कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस वो ग्रुप होता है जिसमें आप उसको भेज देते हैं, जो कि प्रोफेशनल्स का ग्रुप होता है। अगर आप क्लिनिशियन हैं तो उस वार्ड में चला जाए, उस क्लिनिक में चला जाए। आप बेसिक साइंटिस्ट हैं तो कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, उस बेसिक साइंस की, सब फिजियोलॉजी की है, डेंटल मटेरियल की है, पैथोलॉजी की है, उसमें उसको जाने को इनकरेज करें। सो डू यू थिंक वी बीन एबल टू अचीव दीज? ये जरा देख लें। जनाब क्या ख्याल है? हमने ये अचीव किया, मैं ये पूछ रहा हूँ। थैंक यू Yes. डॉक्टर हिरा, थैंक यू वेरी मच। शुक्र है, शुक्र है आपने एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा डॉक्टर हिरा। थैंक यू। Okay, so a very very quick round of feedback. Do you think this session was useful for you? अगले CHP बैच जो मुनीब साहब करेंगे उसमें ये सेशन रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, कुछ फायदा है नहीं है शुरू में? Thank you very much. Thank you, Dr. Samina and everybody else. It was great being with you, and I'm grateful to Dr. Muni for giving me the chance to be with you. And I wish you all the best for this CHP program. And please, जितना apply कर सकते हैं जरूर 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 apply कीजिएगा. Thank you, Dr. Amber and everybody else. Thank you, Assalamualaikum. Dr. Moin, If for there's this. anybody who would like to say anything, you're most welcome. जनाब, thank you, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी. Thank you, मुनीब साहब. Okay, sir. Thank you. With this, I'll be closing the class. जी बिल्कुल Allah बिल्कुल. Hafiz. अल्लाह हाफिज.